This is an India Today impact. External Affairs Minister Sushma Swaraj has promised help to the Indians stranded in Iran. Taking on Twitter, Sushma said she watched the India Today report detailing the distress of Sushil's family and now has promised help. Well, let's get you that story which made Sushma Swaraj react. Under arrest in Iran for 2 years. We bring you the story of Sushil and his family wanting him back home. A heart-wrenching story of a family from Paschim Vihar in Delhi. A helpless mother and her daughter, desperate to have their son back home. Sushil joined a shipping firm in Dubai around October 2013. All was well till his ship was apprehended by Iran on charges of smuggling oil. And despite the Iranian government granting him pardon and the family running from pillar to post to secure their son's release, their pleas have gone unanswered. सरकार से हमें आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला अभी तक. हम पिछले 2 साल से लगातार कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. सुशील और उसके साथियों पर जो आरोप था उसकी सजा वो भुगत चुके हैं, लेकिन रिहाई नहीं हुई. और इसलिए एक मां अब अपनी ममता की दुहाई देकर विदेश मंत्री से मानवीयता के आधार पर मदद की गुहार लगा रही है. सुषमा जी के पास हम गए उदित राज जी के थ्रू, तो उन्होंने भी हमारे को बस यही जवाब दिया. मिला कोई भी नहीं हमें, तो उन्होंने यही कहा कि हम कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट. हम Adding to the misery of this family was the death of Sushil's father recently. And against tradition, Sushil's sister lit the funeral pyre. And she is now desperately hoping to have her brother home for this year's Raksha Bandhan. प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको प्लीज़ वापस ट्राई करें कि वो आ जाए. Sushil had gone abroad in search of a better future. But now his family, whose interest was paramount to Sushil, is struggling to have him back. Now the family has rested their hopes on External Affairs Minister Sushma Swaraj. With Kapil Sharma, Bureau Report, India Today. What we're going to do is we're going to go across to the mother. Well, what we're going to do is we're going to cut across to Renu Kapoor. She's the mother of Sushil, the trapped Indian in Iran. We'd also connect with Monica Kapoor, his sister. But before that, I want to cut across to Shiv Arur, our output editor. After we end that story, just about an hour ago, the External Affairs Minister Sushma Swaraj took to Twitter, where she has gone to state that she wants more details on that story and wants to help Sushil. I want to cut across to Shiv right now. Shiv, you know, after 2 years languishing in jail, this would practically be the first ray of hope for the family here, even though the papers have gone to the External Affairs Ministry. That's correct, Preeti. This is the first time that the family can hope that will be perfect. Quickly, the government has stepped in, even as we speak. Our correspondent Kapil Sharma getting all of the provided to the family, all the letters written, all the documentation ready. External Affairs Ministry, and this is only because External Affairs Minister Sushma Swaraj actually watched India Today's report, responded to it, and has asked for all of the details, promising full help. So in that sense, this is definitely a moment of satisfaction for the family, because they can finally hope. All right, we seem to have lost Shivaru. We're going to try and connect to him again, rectify that audio line. But let me go right now to Sushil's mother, Renu Kapoor, who's joining us from the studio at this point of time. Renu ji, 1 घंटे पहले सुषमा स्वराज जी ने ट्विटर के द्वारा बोला है कि वो मदद करना चाहती हैं, डिटेल्स मांगी हैं. थोड़ा आश्वासन है आपको? मैडम, बहुत लेट हो चुका है उनका ये आश्वासन. मैंने तो अपना बहुत कुछ खो दिया है. आप रेनू जी धीरज रखिए, हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है.
2 साल हो गए हैं, आपकी फैमिली ने बहुत झेला है, बहुत कुछ हुआ है। रेनू जी, हम आपके पास वापस आते हैं। We're going to give that moment of privacy to Renu Kapoor. Of course, she's broken down right now in the face of Sushma Swaraj coming out on Twitter stating that she wants to help the family, she wants to help Sushil. Understandably, Sushil's mother, Renu, breaking down today. She's in the studio with us. We want to give her 2 minutes to compose herself. She wants to talk. She wants to come out and give her side of the story. If we do have Monica, Sushil's sister, and we do have her. So we're going to cut across to Monica Kapoor before we go back to Monica's mother, Monica and Sushil's mother. Monica, Sushma Swaraj has come out. She has stated that she wants to help. Hope now? Do you have hope? Yeah, I do have hopes right now because past 2 years we had been contacting her, but there was no reply. So now I see a hope. Monica, it's been a long fraught battle for you and your mother. You've been through tremendous, you've lost your father in the bargain. We understand what you've gone through. The question I want to ask you is, Monica, you have already approached the External Affairs Ministry. You have already tried to connect with Sushma Swaraj. What do you hope कि अब क्या बदलेगा मोनिका? आपको क्यों लगता है कि अब आपको लगता है कि अभी आपको मदद मिलेगी जो पिछले 1 साल नहीं मिली जब आप बार-बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास गईं? पास्ट 2 ईयर्स से जब हम उनके पास विज़िट कर रहे थे, उन्होंने हमेशा डिले करा है. आई हैव सेंट सेवरल मेल्स टू एम्बेसीज एंड अदर अथॉरिटीज़, बट कोई भी रिप्लाई नहीं आया. ये फर्स्ट टाइम है कि रिप्लाई आया है और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है. ट्विटर पे भी उन्होंने पोस्ट किया है कि आई विल हेल्प. सो येस, आई सी अ होप नाउ. प्रॉब्ली अब हो जाएगा एंड आई रिक्वेस्ट अब प्लीज़ वो कुछ करें कि ताकि वो सब वापस आ पाएँ. Monica, I'm going to come to you because I want, for people who are watching, detail your struggle, detail exactly how is it that your brother is still being held in Iran even after his jail term has got commuted. I'm going to come to you, but I want to speak to your mother for just 2 minutes. रेनू जी, अगर आप हैं हमारे साथ, थोड़ी आपको अभी होप लग रही है, थोड़ा आश्वासन लग रहा है? हाँ जी, अब थोड़ा सा लग रहा है कि उन्होंने हमारी बात सुनी है और कुछ करेंगी ताकि मेरा बेटा वापस आ जाए. रेनू जी, बहुत लंबी इंतज़ार है, ये बहुत लंबा इंतज़ार है. 2 साल आपका बेटा ईरान में है, आपने बहुत खोया है इस 2 साल में. बार बार आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करती नहीं, तब आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ. अभी आपको लगता है, थोड़ा आश्वासन है कि इस बार शायद कोई मदद हो? देखिए, उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी थी और अब अगर उन्होंने जवाब दिया है तो ज़रूर उनको कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे खाली मेरा ही नहीं है, और भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँच सके. उनकी भी उम्मीदें मुझ पर ही हैं कि आप सेंटर में बैठे हो, आप करो कुछ. किसी ने आपसे, जब से आपकी ये स्टोरी इंडिया टुडे पे गई है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में से किसी ने आपसे बातचीत की है? कोई कनेक्शन आपसे मिलना चाह रहे हैं, कोई डिटेल्स मांगना चाह रहे हैं? किसी ने बातचीत शुरू की है आपसे? अभी तक तो किसी ने नहीं करी. अभी तक नहीं करी है? नहीं जी. रेनू जी, आप हमारे साथ बने रहिए. मैं आपकी जो बेटी है मोनिका, क्योंकि वो काफ़ी उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, ईमेल्स लिखी हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, वो केस जानती हैं सुशील का, उनसे बात करना चाहूँगी. मोनिका, कैन यू डिटेल फॉर अस द केस ऑफ योर ब्रदर? How is it that he's still languishing in an Iran jail even though his jail term has got commuted? जब वो 19 जुलाई को यहाँ से गए थे तो हमारे को ये पता चला था कि शिप अरेस्ट हुआ है 28 अक्टूबर को. तो अगर शिप अरेस्ट होता है तो या तो उस पर फ़ाइन चार्जेस लगते हैं या उनको सज़ा मिलती है. बट इस शिप पे दोनों लगे. उनकी सज़ा 2 साल की थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, पर फ़ाइन नहीं हुआ क्योंकि वो शिप के पे जो चार्जेस लगे थे वो शिप के ओनर ने छुड़वा लिया एंड नाउ दे हैव टू पे फॉर दैट. उसके लिए उनको 2 साल और वहाँ रुकना पड़ेगा बिकॉज द ओनर हैज़ बैक्ड आउट. तो उसके लिए दे विल हैव टू स्टे फॉर 2 years. 6 months कंप्लीट हो चुके हैं बट स्टिल अभी भी कुछ नहीं हुआ है. तो मोनिका, जो उनके ऊपर जो फाइन लगाया गया था वो 19 करोड़ था. या एग्जैक्टली. और वो क्लियरली आप नहीं पे कर पाए? बिल्कुल भी नहीं. उनको छुड़ाने के लिए, और जो कंपनी थी, जो मदरशिप थी जिसपे सुशील काम करते थे, वो बैकआउट हो गए हैं. हाँ जी.
आप मुझे बताएंगे ये 2 साल में ये एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहे, और आपने कब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बातचीत शुरू की? आपको कब पता चला कि वो हिरासत में है ईरान में? वी रिसीव्ड अ कॉल ऑन 28 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे भाई का कॉल आया था कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ, बट आई विल टॉक टू यू लेटर। वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद हमारे को 7 मंथ्स बाद मेरे भाई का कॉल आया। उस बीच में कोई उन्होंने कांटेक्ट नहीं करा, क्योंकि वो कर ही नहीं पाए। उस बीच हम बहुत एम्बेसीज एंड ऑल जाते रहे, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट सारी एम्बेसीज बेस्ड इन ईरान, ओमान एंड दुबई, एवरी ओनर को हमने कांटेक्ट करा। उसने इनिशियली तो बात की थी, रिस्पॉन्ड किया था, बट लेटर ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद हमारे साथ एक ह्यूमन राइट्स की कोई जुड़ी थी, उनका नाम था ज्योति पॉल। उन्होंने कुछ दिन केस को परस्यू किया, बट देन शी बैक्ड आउट। आई टेक्सटेड, आई कॉल्ड हर, बट शी सेड आई वोंट डू इट नाउ। देन उन्होंने एक लॉयर हायर करा। उसने पैसे ले लिए थे, वो केस लड़ रहा था, बट उसने भी बैक आउट कर दिया। एंड प्रेजेंटली दे हैव अ लॉयर, हर नेम इज़ जमशीदी। वो केस लड़ रही हैं। वो उन्होंने भी पैसे लिए हैं 10 लाख फ्रॉम 9 मेंबर्स। तो अभी जब भी वो हियरिंग होती है वो जाती हैं केस में, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मोनिका, आपकी और आपकी मदर के लिए ये जो 2 साल हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं। यू हैव ऑल्सो लॉस्ट योर फादर in the meantime. Yeah. No, the reason why I'm asking you, Monica, this question is I understand it's been a really tough time for you. The reason why we're asking you is because you have to encapsulate the fight that has been for you and your family and the other members. When did you approach the External Affairs Ministry? आपने कब उनसे बातचीत शुरू की? कब आपने उनको सारी डिटेल्स बताई? और आपने अभी तक कितना टाइम हो गया है कि अब जाकर उनका रिएक्शन आया है? हमें ये पता चला था उसके 2 मंथ्स बाद ही हमने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम हमें लगा कि मेरे ब्रदर का कोई कॉल नहीं आया है, कुछ नहीं। बट हमारे को कोई और कॉल करता था। मेरे ब्रदर को उनके एक फ्रेंड ने ये जॉब रिकमेंड की थी, तो वो दूसरी शिप पे थे जब मेरा ब्रदर वहाँ पे गया। जैसे ही वो शिप पे चढ़े तो थोड़े दिन तो उनका फ्रेंड वहीं पे था, बट वो वापस आ गया। वो वहाँ के किसी लोगों से कम्युनिकेट करता था एंड दे यूज्ड टू टेल अस कि वहाँ क्या हो रहा है। 2 मंथ्स बाद हमने एम्बेसीज़ में कांटेक्ट करना शुरू करा। वो काफ़ी टाइम तक चला, बट हमने सारी एम्बेसीज़ को कांटेक्ट किया था। आई रोट सेवरल टेक्स्ट मैसेजेस एंड मेल्स टू सुषमा स्वराज ऑल्सो, एंड नरेंद्र मोदी जी ने एक वेबसाइट बोली थी हेल्पलाइन, मैंने उस पर भी बहुत सारे मैसेजेस किए थे, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। हम डेली कॉल भी कर रहे थे, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। वो हमेशा डिले करते थे कि आप इनको कॉल करो, पर उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। तो मोनिका, आप कह रही हैं कि आज तक आपने, जैसे आप कह रही हैं कि 1 साल हो गया कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बातचीत शुरू करी है, हाँ जी। और आज तक सुबह तक 1 घंटे पहले तक जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने वो ट्वीट किया है, उसके पहले तक आपने कुछ नहीं सुना है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से? कुछ भी नहीं। वो हमें रीज़न बताते थे कि वो वहाँ क्यों हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है। उन्हें कभी हमें ये नहीं बताया कि इंडियन गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है उनको वापस लाने के लिए। हमेशा जिस भी एम्बेसी से हमने बात करी, दे यूज्ड टू टेल अस कि फॉर व्हाट रीजंस दे आर देयर। हमें जब भी हमने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, वो हमेशा बता देते कि उन पे ये चार्जेस लगे हुए हैं, वो चार्जेस, बट वी नो दैट। हमें जानना था कि आप क्या कर रहे हो उनको वापस लाने के लिए। तो आज तक आपको nobody has said anything to you. This is the first time you're saying in 2 years since your brother has been in an Iran jail. First time 1 hour back you have heard it from the External Affairs Minister that she is willing to help. Exactly. Do you believe her? या आई डू बिलीव हर। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई पहले तो होप नहीं थी, अब थोड़ी होप है हमें कि शी विल हेल्प अस। होपफुली शी विल हेल्प अस दिस टाइम। वेणु जी, आपकी क्या आपके बेटे से इन 2 साल दौरान में बातचीत होती रही? आप जानती हैं वो कैसे हैं? हाँ, वो कभी कभी वो जानता था कि हम लोग बहुत परेशान हैं, तो किसी से मतलब हेल्प लेके या कैसे भी कार्ड वगैरह अरेंज करके तो कभी कभी फ़ोन कर लेता था। Monica, have you been able to speak to your brother? What does he say? What kind of condition is he in? Emotionally, physically, is he well right now? Have you been, and how often have you been able to connect with him? We talk to him twice in a month,
बिकॉज वो उनको अलाउ कर देते हैं कि इतना तो वो कर दें। वहाँ पे जो ईरान की जेल है, दोज पीपल आर नाइस विद देम। उनको भी पता है कि मेन कल्प्रिट इज़ द ओनर, उन्होंने इलीगली उसको जो भी किया था वो किया था, उनको भी पता है। बट मेन वो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनको कोई लेटर भेजे ताकि वो उनको छोड़ पाएँ। द मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट विल डू समथिंग, दे विल सेट देम फ्री। So you're saying, so what does he tell you, Monica? आपको क्या बताते हैं वो? ही इज़ फिज़िकली फाइन, बट उनको घर तो बिल्कुल आना है। उनको डेली काम भी कराए जाते हैं वहाँ पर, जो सीमेंट एंड ब्रिक्स सबके काम होते हैं। एंड उनको जो थोड़ी बहुत पे मिलती है वो उससे कार्ड खरीद सकते हैं, देन दे कॉल अस। So he's allowed to speak to you? Yeah. So once in a while, yeah. So Monica, he knows के the kind of struggle that your family is going through. He knows he's lost his father. All of that your brother knows right now. Yeah. Monica, since today morning, since the External Affairs Minister has tweeted, what is your next course of action? क्या करना चाहोगी तुम? अभी हम फेसबुक पे एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रिंग सुशील कपूर बैक। वी वांट उसमें मैक्सिमम लोग जुड़ें, ताकि अगर हमें यहाँ से रिस्पॉन्ड ना मिले हम एक स्टेप आगे लें, इसको लेकर जाएं, सो दैट अब हमें नहीं रुकना। बिकॉज अब कंडीशन ये है, माई फादर हैज़ एक्सपायर्ड, अब कुछ होप ही नहीं है कि हम क्या करेंगे आगे। ही इज़ द ओनली अर्निंग मेम्बर इन आवर फैमिली, एंड अगर वो नहीं होंगे तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। रेनू जी, आप कह रही हैं कि फाइनेंशियली ऑल्सो अब बहुत कंस्ट्रेन है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने 2 साल ये लड़ाई लड़ी है, पैसा तो गया ही होगा। आपने 2 लॉयर्स हायर किए हैं इसके लिए। जी हाँ, मैं काफ़ी मतलब फाइनेंशियली डाउन हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड की बीमारी पे भी बहुत लग गया है। लास्ट में ये स्टेज थी कि मेरे पास लास्ट वाले दिन 5000 भी नहीं थे कि मैं उनको जाके एम्स में भी इलाज करा सकूँ। दिस इज़ द फैक्ट। रेनू जी, एंड यू हैव बिन, आप कह रही हैं कि आपने पिछले 2 साल में जो आपने लॉयर्स हायर किए हैं, आपने जो पैसा समेटा है, अभी फाइनेंशियली आपके पास कुछ नहीं बचा है। मुझे अपनी बिटिया को भी पढ़ाना है और अपना घर भी देखना है, और मैं रेंट पे रहती हूँ, और मतलब जो भी आपको पता है सब कैसे हालात हो जाते हैं जब घर में बीमारी हो और कोई अर्निंग मेंबर ना हो। रेनू जी, आपने जैसे पहले बोला कि सुशील तो आपका बेटा है, आप यहाँ तक आए हैं, उनके साथ और भी लोग हैं, कि और भी लोग उनके साथ थे जब वो अरेस्ट हुए? रेनू जी, हाँ जी, उनके साथ 8 मेंबर और हैं, 1 कैप्टन है और बाकी क्रू मेंबर। मोनिका, जो क्रू है, जो और भी आप कह रहे हैं, जैसे आपकी मदर ने बताया कि 8 लोग और अरेस्ट हुए हैं सुशील के साथ, उनकी फैमिली से आपकी बातचीत हो रही है? कोई उनमें से फ्री हुआ है या सबका एक ही टर्म है? जो बाकी 8 मेंबर्स हैं उनमें से 3 मेंबर्स की फैमिली मेंबर्स से हम टच में हैं, बट वो बाहर रहते हैं, बिहार, दे ऑल आर फ्रॉम इंडिया, बट बिहार, छत्तीसगढ़, तो वो बीच में नहीं आ सकते क्योंकि दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल, दे आर नॉट वेल टू डू। एंड बाकी जो 5 मेंबर्स हैं उन्होंने अभी तक घर पे भी नहीं बताया है कि वो अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने घर पे भी नहीं बताया? नहीं। और आप कह रही हैं इन टोटल 8 हैं जो सुशील के साथ हैं? हाँ जी। और जो उन पे केस है वो एग्जैक्टली जो वही केस है जो सुशील पे केस लगे हैं? वो सारे एक ही शिप पे थे, तो उन सबको साथ में ही अरेस्ट किया था। मोनिका, आप मुझे थोड़ा बताएंगी कि ये कौन से चार्जेस पे अरेस्ट हुए थे सुशील और उनके कॉलीग्स? ये डीजल स्मगलिंग के में हुए थे। इनका जो शिप की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा इन पे चार्ज लगाया गया था। इनका सारा पासपोर्ट, सारा सामान, सेल फोन्स उन्होंने ले लिए थे। एंड जब फर्स्ट डे था, इनिशियल डे जब वहाँ पकड़ा गया था, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे टॉर्चर किया था। एंड जब सब चीज़ें ले ली, उन पे गलत चार्जेस लगा दिए एंड अरेस्ट कर लिया। सो बेसिकली डीजल स्मगलिंग के चार्जेस पे थे। हाँ जी। और इनिशियली जो ओनर थे शिप के, मिस्टर फैजल जी, मिस्टर फैजल जी, मिस्टर, वो कहाँ के हैं? वो दुबई के हैं। वो दुबई के हैं। हाँ, और वो उन्होंने अपना वेसल छुड़वा लिया है? हाँ जी। और जो क्रू था ऑन बोर्ड, उनको मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया है? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है और उन्होंने अपनी शिप छुड़वा ली है। आपने बात की उनसे? बहुत कांटेक्ट। जब लास्ट टाइम आपने बात की, उन्होंने क्या कहा आपसे? लास्ट हमारी बात उनसे 1 साल या
1.5 साल पहले हुई थी, उसके बाद उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया हमसे। तो कोई कांटेक्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Monica, do you actually believe now that maybe there could be a turn of events, maybe the External Affairs Ministry, जो पिछले 1 साल से जब आप उनसे बार बार जा रहे हैं, आपके पास, आप कह रही हैं कोई ऑप्शन ही नहीं है but to believe what the External Affairs Minister is saying, other than launching a campaign which you are saying कि आप Facebook पे campaign launch करना चाहेंगी, आप अभी जो सुषमा स्वराज ने बोला है उनके उस बयान पे आप वापस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जा रही हैं, फिर से अप्रोच करना चाह रही हैं? हाँ जी, हम करेंगे ताकि ये स्टॉप ना हो। वी डोंट वांट कि ये न्यूज़ बन के रह जाए। हम चाहते हैं कि अभी इस मोमेंट पे हम मैक्सिमम जो कोशिश कर सकते हैं वो करें ताकि ये रुके नहीं, बिकॉज आई वांट माय ब्रदर बैक एनी हाउ। रेनू जी, आपकी लास्ट अपने बेटे से कब बात हुई थी और क्या कह रहे थे वो? मेरी लास्ट बात 4 अगस्त को हुई थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। उसके बाद वो कंटिन्यूस फ़ोन कर रहा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या बोलूँ। सब कुछ पता लग गया उसको। उसका बहुत बुरा हाल है रो रो के पापा के लिए। बहुत इमोशनल बच्चा है, लेकिन वो भी हेल्पलेस है और हम उसके लिए हेल्पलेस हैं। रेनू कपूर एंड मोनिका कपूर, बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने का, आप हमारे स्टूडियो आए। What we can promise at our end is that we would make sure that we take your story forward. That's what we can do here, and we do hope that the External Affairs Minister Sushma Swaraj comes good on her word, where just about an hour and a half ago she has promised help to these 2 women who joined us on this broadcast, to Sushil, who is right now languishing in an Iranian jail along with 8 others. We'll keep getting the latest on that story. Thank you for joining us.